Hello everyone, welcome to Apna College. तो देखो, in this class, this particular video, one of the most important chapters we are going to do, that is profit and loss. अच्छा, इधर profit and loss के साथ discount भी will discuss. Okay, first let me write it down. Profit, loss, and discount. All the things we are going to discuss in this video. This will be a longer video, around 1.5 hours. So just sit tight and understand this very, very important chapter. I'm again and again saying this. It is very important. At least one question and at most any number of questions you can expect from this chapter. Very, very important chapter. Now, profit and loss सीखने के लिए there are three things first we need to understand: CP, SP, and MP. So let me write it down: CP here, SP here, and MP here. Now, what does this mean? CP stands for cost price. CP stands for your cost price. Now, what does cost price means? Cost price का मतलब ये है कि जितना पैसा देके, जितना प्राइस देके आपने वो चीज खरीदा है. Now, you may buy it from someone. Now, it may so happen कि भाई आप ही मैन्युफैक्चरर हो, आप ही वो चीज को बना रहे हो. So in that case, say for example, you have a shoe factory. Now, if you want to buy manufacture a particular shoe, you need a certain things like raw material चाहिए होगा, labor cost चाहिए होगा, electricity bills आपको देना पड़ेगा, right? So those all combined will make up your CP or the cost price. This is your cost price. Now, SP, excuse me. SP stands for selling price. You see, this is self-explanatory. Meaning, whatever the price at which you are selling the shoe, जो आपने शू मैन्युफैक्चर किया, बनाया, वो आप कस्टमर को कितने पैसे में बेच रहे हो, दैट इज योर एसपी, योर सेलिंग प्राइस. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नाउ व्हाट इज एमपी? एमपी स्टैंड्स फॉर मार्क्ड प्राइस. एमपी is nothing but your marked price. Now, what do I mean by marked price? Marked price is nothing but the tag price. It also is in India it is known as MRP. जो आपके पास देखना, आप कभी भी आप कोई मॉल पे गए हो, देयर इज अ जीन्स यू लाइक, तो आप देखना उसके ऊपर देयर इज अ टैग, एक लेबल लगा हुआ है, उसमें कुछ प्राइस लिखा है, 2000, 1000, 1500, whatever. So that is your MP. Now please understand why these things are important. Please understand, this is very important. CP is important because every profit or loss, percentage profit, percentage loss, everything will be calculated on CP. हमेशा CP के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, if not given otherwise in the question. अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बता दिया गया कि भाई SP के ऊपर लॉस हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर कुछ नहीं बताया गया तो 99% ऑफ द केसेस में CP के ऊपर ही आपका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैलकुलेट होगा. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट इज SP? SP, I again told you guys, SP is very simple. SP जितने पैसे में आप बेच रहे हो, that is your SP. Now, marked price क्यों important है? Marked price is important for a different issue. Any discount you get will always be on the marked price. Now, what do I mean by discount? Now, आप सोचो कि discount means everybody knows कि you want to say for example you have gone to a shop, 2000 का जीन्स है, चलो I'm writing it over here, ₹2000 का एक जीन्स आपको पसंद आया. Now you want to buy it and the mall is saying कि we offer 20% discount. 20% discount. Now you may say कि 20% discount on what? Because CP में हो सकता है, SP में हो सकता है, MP में हो सकता है. Always remember, this discount will always apply on its marked price. जो प्राइस आपका टैग के ऊपर लिखा है उसके ऊपर होता है. हमेशा देखो यही होता है, आप खुद जब खरीदने जाते हो कोई भी चीज, तो जो डिस्काउंट होता है दैट विल ऑलवेज बी ऑन योर MP, मार्क प्राइस के ऊपर ही होगा, राइट? नाउ देयर इज समथिंग एल्स जो आप हम लोगों को थोड़ा जानना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस. नाउ ओवरहेड्स भी बोला जाता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड का मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. ये ओवरहेड कैसे होता है? आप सोचो कि यू हैव गॉन इन लाइक से फॉर एग्जांपल यू हैव द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर द शूज. तो अभी क्या हुआ, शूज आपने बनाया, रॉ मटेरियल एक्वायर किया,
लेबर कॉस्ट यूज किया एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल द अदर एक्सपेंसेस यू हैव डन. नाउ यू कांट रियली लाइक सेल आउट ऑफ द फैक्ट्री. जो फैक्ट्री में जिधर आपने लाइक माल बनाया, शू को बनाया, उधर आप थोड़ी ना बेच सकते हो. सो फॉर दैट थिंग यू नीड अ शोरूम, यू नीड अ शॉप और वट एवर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अभी वो जो जूता है जो आपने बनाया उसको आप शोरूम तक कैसे भेजोगे? शोरूम तक बाय यूजिंग ट्रक्स और सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल यूज इन ऑर्डर टू लाइक काइंड ऑफ सेंड द शूज फ्रॉम द फैक्ट्री टू द शॉप. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो चीज होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो फ्री नहीं है. दैट इज काइंड ऑफ कॉस्ट यू हैव टू टेक इट लाइक इनटू अकाउंट. सो दैट इज योर ओवरहेड एक्सपेंडिचर. तो वो हमेशा ना सीपी के साथ ऐड होता है, क्योंकि वो भी आप ही का खर्चा है, वो खर्चा भी आप ही ने उठाया है. से 1000 रुपये का एक जूता आपने बनाया तो उसके ऊपर से 50 रुपये का वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया. तो सीपी इज नॉट 1000 बट CP is 1000 plus whatever you in this case that is 50 rupees. Now ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ चीज खरीदा, उसको आपने रिस्टोर किया, रिफर्बिश किया एंड उसके बाद आप बेच रहे हो, तो आपका CP जितने में आपने खरीदा था वो नहीं होगा. आपका CP विल बी द लाइक जितने में आप खरीदा प्लस उसके साथ की क्या, उसके साथ आपका रिपेयर में जितना खर्चा हुआ, रिफर्बिश करने में जितना खर्चा हुआ. सो एवरीथिंग कंबाइंड विल बी योर CP. सो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. I hope this is clear to everybody. What is CP, SP, and MP? Now, one more thing I want to kind of say over here. Please understand this. कि whatever happens, CP से you can go to SP. Now, कैसे जाओगे आप बताओ? Like we will go there. MP से also you will go to SP. कैसे? चलो. CP से SP कैसे जाओगे? से CP से के ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वट एवर हैपन्स, यू विल ऐड. प्रॉफिट हो तो ऐड करोगे, लॉस हुआ तो सब्सट्रैक्ट करोगे. मतलब अगर मेरे पास मैंने 1000 रुपया का एक चीज बनाया, एक जूता बनाया, ठीक है, एंड मैंने वो वाला चीज के ऊपर 20% प्रॉफिट किया. नाउ यू टेल मी कितना प्रॉफिट होगा? दिस इज सिंपल परसेंटेज. 1000 रुपीज का 20% दैट इज 200 रुपीज. दिस इज माई प्रॉफिट. This is what? This is my profit, right? Now please understand. So that means selling price is what? जो 1000 rupees मैंने like मेरा CP है, उसके साथ जो मैंने प्रॉफिट कमाया that is 200. That means my SP is going to be 1200 rupees. Now that is how we can go from CP to SP. Now अगर मैंने बोला कि नहीं 20% प्रॉफिट नहीं 20% लॉस हुआ है, तो क्या होगा? That will be 1000 minus 200. वो मेरा लॉस हो गया. राइट, दैट इज हाउ यू कैन गो फ्रॉम CP टू SP. नाउ MP का क्या? MP से SP कैसे आए? MP से कैसे SP आए? जैसे हम लोगों ने किया 20% डिस्काउंट ऑन MP दैट इज 2000. तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 2000 का 20% इज ₹400. तो SP क्या होगा? SP का मतलब क्या है? आप सोचो कि 2000 रुपीज का जो मार्क प्राइस था उससे मेरे को 400 रुपया कम देना होगा इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ बाई फ्रॉम देयर. दैट मीन्स फॉर दैट शॉपकीपर जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? 2000 जो उन्होंने लिख के रखा था उधर से 400 रुपया कम, दैट इज 1600 रुपीज. दैट विल ऑल्सो बी द SP. ये MP नहीं है, MP इज 2000, SP इज 1600. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, CP से हम SP जा सकते, MP से हम SP जा सकते, बट देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला फॉर दिस थिंग. CP एंड SP के MP के बीच में, CP एंड MP के बीच में यू डोंट हैव एनीथिंग, एनी हेडरूम लाइक ट्रेडिशनली. हाँ, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में ये रिलेशन आपको दिया जाएगा कि CP एंड MP के CP को 50% बढ़ा के उन्होंने MP रखा, then you can do it. But otherwise, if that's nothing like that is given, your only way for solving those type of problems is to go by SP. कैसे करना होता है? CP से आप SP चलो, MP से आप SP आओ, दोनों को इक्वेट कर दो, then you will get your expression or the equation or the answer. But डायरेक्टली CP से कुछ लगा के MP या MP से कुछ लगा के CP, ये कभी नहीं हो सकता if not given in the question. I hope this is clear to everybody. This is the first and the most basic part that we need to understand. The relationship between CP, SP and MP. Now, another part is this. हमेशा याद रखो, अगर SP आपका CP से बड़ा है, मीनिंग आपने जितने पैसे में चीज बनाया
या खुद खरीदा, उससे ज्यादा पैसे में आपने उसको सेल किया, कॉस्ट प्राइस जो आपका था उससे आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो दैट विल बी योर प्रॉफिट, राइट? ऑलवेज जो ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। नाउ इफ एसपी इज लेस देन योर सीपी, देन क्या होगा बताओ? तो आपने जितने में खरीदा उससे कम में आपने बेच दिया, तो डेफिनेटली विल इनकर सम लॉसेस। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आता है? ऐसे आता है, प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट। अच्छा, लेट्स राइट इट इन द नेक्स्ट पेज ओनली, आई गेस ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। चल, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट इटसेल्फ। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट विल ऑलवेज बी एसपी माइनस सीपी। अच्छा, एसपी माइनस सीपी मीनिंग सेलिंग प्राइस माइनस योर कॉस्ट प्राइस। नाउ लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस में कुछ नहीं, सीपी बढ़ा है। देखो इधर एसपी माइनस सीपी क्यों लिया हमने? प्रॉफिट का मतलब क्या था? प्रॉफिट का मतलब था कि एसपी विल बी ग्रेटर देन योर सीपी, तो दैट इज वाई जो बड़ा है उधर से मैं छोटा वाला माइनस करूंगा। लॉस के केस में क्या होगा? सीपी इज योर बिगर टाइम टर्म, तो सीपी माइनस एसपी विल डू, इधर यू गो लाइक दिस। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इट्स वेरी लाइक सिमिलर टू द परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। सो बिकॉज ये भी एक परसेंटेज ही है एट द एंड ऑफ द डे। परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा? परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, प्रॉफिट आप बताओ किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? मैंने हमेशा बताया कि प्रॉफिट विल ऑलवेज बी ऑन सीपी, तो सीपी विल बी इन द डिनोमिनेटर एंड फॉर परसेंटेज यू मल्टीप्लाई 100। नाउ इट मीन्स प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट मेरा था एसपी माइनस सीपी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इनटू 100, सो दैट इज योर परसेंटेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट अबाउट परसेंटेज लॉस? परसेंटेज लॉस इज लॉस डिवाइडेड बाई, लॉस भी सीपी के ऊपर ही आता है, तो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इनटू 100। और यू कैन राइट लॉस क्या था? लॉस वाज सीपी माइनस एसपी, तो सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100 यू कैन से। बट देखो इधर थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि लॉस है या प्रॉफिट है, तो इन दैट केस द बेटर वे टू गो इज ओनली रिमेंबर दिस थिंग, ओनली रिमेंबर दिस। नाउ कैसे? तो मैंने किया एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज में। अभी देखो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ₹2000 का मेरा जीन्स था, चलो ठीक है, लाइक दिस इज माई सीपी, दिस इज आई एम टेकिंग एज माई सीपी। 20% प्रॉफिट या कुछ भी, चलो मैंने बोला एसपी इज माई 2600, तो क्या होगा? तो दिस इज माई एसपी, तो ये वाला फॉर्मेट में डालेंगे तो क्या आएगा? 2600 एसपी माइनस सीपी, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाई सीपी ऑलवेज, दैट मीन्स 2000 अगेन इनटू 100। तो करेंगे तो देखो भाई ये 30% आएगा। आई होप क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट अगर मेरा एसपी, से फॉर माई एग्जाम्पल माई एसपी इज नाउ से 1400 रुपीज, मेरा सीपी कितना था? 2000। नाउ इधर से दो वेज है, देखो आप, एक तो बहुत सिंपल सा देख के पता चल रहा है कि भाई देखो 1400 इज लेस देन 2000, तो लॉस हुआ है, तो वी विल यूज दिस। बट व्हाट इफ कि वैल्यूज वगैरह आपका एक्स टर्म्स में है, एक्स के टर्म में है, एंड आप देख के वैल्यू, ऐसा नहीं है कि आप देख के बता सकते हो कि ये कम है या ज्यादा है, तो इन दैट केस ऑल्सो डोंट वरी, यू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं, आप एक ही फॉर्मूला यूज करो। तो एसपी इज 1400, CP is 2000, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई क्या होता है? CP होता है 2000 इंटू 100। तो देखो इसको करोगे ना तो आपके पास -30% आंसर आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर माइनस में आंसर है दैट मीन्स आपने गलत नहीं किया, ये माइनस सिग्निफाई करता है कि भाई देखो प्रॉफिट नहीं, हमको लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट नहीं हुआ है हम लोगों को, लॉस हुआ है। सो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एसपी सीपी देख के पता नहीं चल रहा, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि भाई आपको गलत हो गया या कुछ भी। तो ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर लाइक वन फॉर्मूला ओनली। प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट, माइनस में आया तो परसेंटेज लॉस हुआ। इससे लाइक आसान तरीका आई डोंट थिंक हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत लाइक बेसिक क्वेश्चन। A man bought an old typewriter for 1200 rupees, okay,
and spent 200 rupees on its repair. He sold it for rupees 1680. His profit percentage is how much? Now please understand. तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा सीपी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इन्होंने 200 रुपया रिपेयर में खर्च किया. दैट मीन्स दिस इज योर ओवरहेड वी आर टॉकिंग अबाउट. ये आपका ओवरहेड है, तो ये भी आपका सीपी के साथ ही ऐड होगा. तो एक्चुअल सीपी क्या बनेगा? एक्चुअल सीपी यू कैन राइट एक्चुअल सीपी इज 1200 प्लस दिस 200. ये भी आपका सीपी का ही पार्ट है. दैट मीन्स आपका आएगा 1400 रुपीज. राइट नाउ बेचा कितने में? सेलिंग प्राइसेस. दिस इज योर एसपी गिवन. ओके एंड दिस वाज योर सीपी. तो कैन आई फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज? सारे बिल्कुल में निकलेगा. परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. तो करेंगे तो 1680 एसपी है, लिख के रखा है मैंने. सीपी कितना है? 1400 है. डिवाइडेड बाय कितना है? 1400 सीपी इंटू 100. लेट्स सी कितना होता है. दिस इज 280 रुपीज ऊपर डिवाइडेड बाय, दो जीरोस को हटा दो, दो जीरोस गॉन, सो 14. तो 14 2s are 28. सो माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी 20% प्रॉफिट हुआ उनको. दैट इज ऑप्शन ए. Option 1 is your answer. That is 20%. I hope this is clear. Absolutely, I hope this is clear. Perfect. Makes sense. Let's move on to the next part. It's a very, very good question. Again, I'm saying especially for the ninja students, this is a very good and very common type of question. तो आपको आना चाहिए. क्या है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको बता दिया. परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस हियर. रेशियो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया. तो रेशियो में क्या है? देखो भाई, रेशियो आपको अगर दिया है एंड परसेंटेज या और एक रेशियो पूछ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर if they have given you the like ratio and now they are asking like percentage, like something in terms of percentage or in terms of ratio, in that case you don't need to really take any kind of variable or whatsoever. So इसका मतलब क्या? CP and SP का रेशियो, CP by SP is given as 11 by 15. तो आप क्या कर सकते हो कि CP को आप झट से 11 पकड़ लो, SP को आप झट से 15 पकड़ लो. नो नीड टू टेक 11x 15x एनीथिंग. तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या था? परसेंटेज प्रॉफिट क्या था? क्यों? अब सोचो अच्छे से, क्यों मैंने बोला कि ये नहीं चाहिए? तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100%. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ रेशियो ओनली. दिस फ्रैक्शन मीन्स रेशियो. तो फ्रैक्शन जब आएगा, तो अगर मैं x लिया भी होता 11x 15x, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा. सो अगर कैंसिल ही कुछ हो जाएगा, मेरे को दिख रहा है, तो क्यों ले उसको? डायरेक्ट यूज कर लेते. तो इसको अगर डालेंगे तो देखो SP इज 15, CP इज 11 डिवाइडेड बाई CP इज अगेन 11 इंटू 100. तो दैट इज 4 by 11 इंटू 100. नाउ यू सी, अंडरस्टैंड दिस. 1 by 11 क्या होता है? 1 by 11 परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया था 9.09%, और यू कैन से 9 whole 1 by 11%. Now 4 by 11 will be how much percentage? तो ये परसेंटेज टर्म्स मतलब 100 मल्टीप्लाई करके ही है. तो इसका मतलब आएगा 9 4s are 36. 36 and 4 means 4 by 11%. है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है. ऑप्शन 2 is your answer. 13 whole 4 by 11. It can also be written as 36.36%. ये भी आपका अगर आंसर ऑप्शन में होता तो ये भी होता आपका आंसर. तो हमेशा फ्रैक्शन टर्म्स में रहेगा. दिस इज नॉट नेसेसरी. दे मे लाइक एंड अप गिविंग यू द ऑप्शंस इन परसेंट लाइक द डेसिमल्स आल्सो. तो थोड़ा उसमें भी थोड़ा ध्यान रख के चलना. परफेक्ट. मूविंग ऑन देन. नाउ इंटरेस्टिंग अप्रोच एक इधर मेरे को थोड़ा सिखाना है आप लोगों को. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे ये वाला, एंड इसमें ना एक छोटा सा चीज हम लाइक आई वांट टू टेल यू, दिस इज नथिंग. जो टेक्निक में सिखा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन. दैट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? ऑफ द एज ओल्ड यूनिटरी मेथड. सबको आता है हम लोगों को, राइट? हम सबको यूनिटरी मेथड तो आता है. तो वही वाला एज ओल्ड थिंग का ही थोड़ा एक्सटेंशन है. थोड़ा काइंड ऑफ यू कैन से मैंने थोड़ा उसको ऑटोमेट किया है.
थोड़ा उसको ऑटोमेट किया है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. Now, a shopkeeper sells an article at 12.5% profit. If the SP of the article is this much, find the CP of the article. अच्छे से समझो, अच्छे से समझो. देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट दिस. मैं थोड़ा एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं. जैसे तो आपके पास एक ही वैल्यू है, वैल्यू आपके पास एक ही है, बाकी सारा कुछ परसेंटेज है, प्रॉफिट है या लॉस है. तो वैल्यू को पहले लिख लो 630 इनटू समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, वन फ्रैक्शन आई राइट. फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन के नीचे क्या आएगा? जो आपको दिया है. मीनिंग अंडरस्टैंड दिस. 12.5% प्रॉफिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 12.5% प्रॉफिट. इसका लाइक एनी लेमैन को अगर पूछोगे उसका मतलब कि सर अगर सीपी आपका 100 रुपया हुआ, एसपी आपका क्या है? एसपी आपका 112 रुपया 50 पैसा. राइट? कैन आई से दिस? दिस इज योर सीपी. अगर ये हुआ तो एसपी आपका ये है. एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सीपी मेरे को तो इधर क्या है? दिस 630 इज व्हाट? मेरा सीपी है, एसपी है, एमपी है, क्या है? देखो ये मेरा एसपी है. 630 एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 630. तो ये वैल्यू जिसको भी डिनोट करेगा, वेदर दिस इज सीपी, वेदर दिस इज एमपी, वेदर दिस इज एसपी, इसके नीचे वही वाला चीज आएगा. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय वही वाला चीज? देखो एसपी क्या है हम लोगों का? एसपी है 12.5% प्रॉफिट, मींस एसपी इज 112.5. राइट इट डाउन ओवर हियर. एंड ऊपर क्या बैठेगा? नाउ लाइक ऊपर क्या बैठेगा? ऊपर जो आपसे पूछ रहा है, दे आर आस्किंग फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल. तो सीपी का मतलब सीपी कितना था? 100 था. ऊपर 100 आ जाएगा. Please understand this. Now, why this is important? Let me answer that. But before, let me write it down. तो जो मैंने बोला, so that you guys also have a note. 630. तो नीचे क्या है? Whatever is given, whatever the value represents. ये हमेशा क्या होगा? आपका नीचे आएगा. In this case, that is the 630. That is your 630, right? And ऊपर क्या होगा? ऊपर whatever they want you to find. They want you to find out. Okay? These are the things that you must remember. Now, it may so happen, now this, why I'm saying this is a very interesting method. In what way this is interesting? Because this is kind of a modular method. That is why I like this method so much. Now, क्या है? तो अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दिस सेम थिंग ओवर अगेन 630, दैट इज योर एसपी, दैट इज 112.5 नीचे आ गया. ऊपर सीपी ना पूछ के दे आर आस्किंग चलो टेल मी द प्रॉफिट. टेल मी द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपीज. तो क्या करोगे? तो आप बताओ 12.5% प्रॉफिट मीन सीपी अगर 100 है तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? यू विल से सर प्रॉफिट होगा 12.5 रुपीज. 12.5 रुपीज, सॉरी नॉट परसेंटेज. तो दैट मीन्स इफ दे आर आस्किंग यू कि फाइंड आउट द प्रॉफिट, जो आपसे पूछा है, क्या बोला मैंने? वॉट एवर दे वॉन्ट यू टू फाइंड आउट. इफ दे वॉन्ट यू टू फाइंड द प्रॉफिट, यू जस्ट पुट द प्रॉफिट ऑन टॉप. दैट इज इट, नथिंग एल्स यू नीड. तो सेम एक्सप्रेशन विल गिव यू यू कैन आंसर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस इफ यू कैन गेट अ हैंग ऑफ इट. नाउ कमिंग इनटू द कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा आपको लग सकता है. नाउ 112.5 जो है ना, उसको 100 से डिवाइड करोगे. 12.5 वॉज 1/8. 12.5% वॉज 1/8%. चैप्टर में मैंने बार बार बताया कि दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो 112.8 मीन्स आप सोचो 100 प्लस 12.5 in terms of percentage. So that means this is nothing but, can I say this is 9/8? This is 9/8. Why? Because 100 means in terms of fraction 1, 12.5 means in terms of fraction 1/8. So 1 plus 1/8 is 9/8. And ये देखो उल्टा है, 100 ऊपर है, 112.5 नीचे है. That means it is 630 into 9/8 की जगह क्या होगा? 8/9. So 9 7s are 63. So this is 560 rupees. This is your 560 rupees. Option 2 is the answer. Option 2 is your correct answer. Similarly, over here also, if you want, you can calculate like this. You see, this is 1/8, this is 9/8. As 630 into
This is 1 by 8, this is 9 by 8, ऐसे लिखे these are gone, so this will be how much? It's like 9 sevens of this. तो profit आपका आएगा 70 रुपया का. 70 रुपया was the profit. Now if SP is given, you don't have CP, then this is the best way to go. And don't worry, this method is not limited to this question. बहुत सारे questions में we are going to use the same thing. So just please understand this first, because other than that we can't really move on. देखो, so next question में चलते हैं. So this is again we'll use that very method that we just used. First let's read the question. A horse was sold for rupees 80,000 at 25% profit. In order to gain 40% profit, at what price should it be sold? That is the question. अच्छे से समझो. 25% profit, 40% profit, and 80,000 is given. Three things are given to us. Now please understand. Now what do I mean by 25% profit? Can I write कि अगर मेरा CP 100 रुपया है, 100 rupees, then my SP will be 125 rupees if I want to get to 25% profit. Now if I want to get to 40% profit, what is going to be my SP? So can I say my SP will be 140 rupees then? 100 rupees का 140 हो गया. Now please understand. Again what I'll do, I'll write down 80,000, because that's the only value that I got in terms of rupees, like in terms of monetary value. So into something by something. Now please understand, पहले नीचे. This is what? This is, I can say this is my SP at 25% profit. Can I say this? We'll say definitely I can say this, because this is given in the question. 80,000 is what? The SP at 25% profit. That means SP at 25% profit was how much? It was 125. So this will be my denominator. I hope this much is clear. Now numerator क्या होगा? Numerator, what they have asked is, please understand, नीचे क्या था? Whatever the value it represents, अच्छा it represents, that means this 80,000 जो भी जिसको भी represent करे, that in this case 125. Now ऊपर क्या होगा? ऊपर whatever they want you to find out, that means here they want what? They want the SP only, what price it should be sold, meaning they are asking SP only. But when there is 40% profit, which is SP, when that there is 40% profit is 140. That means they are asking this. So that will be your numerator. It's done. एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा. You see, this can be solved in one single line if you know the calculation. Let's calculate this. 25 fives are this. इसको देखो, 800 को 25 से if you do ना, 800 divided by 25, so it will be 32, and 2 zeros, that means 3200. Again, what can be done? This can be written as 28. So you just do 32 into 2800. Sorry, 3200 into 20. It's extremely sorry. 3200 into 28. Now we'll say itna bada calculation who will do? You don't need. Why? 2 zeros will be at the end. So 2 zeros here, here, here. Everywhere it is ending with 2 zeros. That means I need the third digit. I need my third digit. If this matches, then I can say this is my answer. So 2 into 8, how much will that be? Unit into unit. 8 2s are 16. So the third digit should be 6. Just check the answers, the options. 4006 is here. So that is going to be my answer. I will never calculate if it is not absolutely necessary. अगर बिल्कुल necessary नहीं है तो I will not calculate. And इसको भी if you want to calculate 32 into 28. देखो 32 into 28. There is another special technique that you can use. You see, I can write 32 as 30 plus 2 and 28 as 30 minus 2. So you see, a plus b into a minus b ka formula, that is a square minus b square. 30 square is 900 minus b square is 4, that is 896. And there will be last with those 0 बैठा दो तो 896.
तो इधर से क्या आएगा, इट विल बी 89600. If you want to calculate, this is the best way to calculate. But in this case, you don't need to do all these things because the options are quite clear. And honestly speaking, it is not like कि मैंने जानबूझ के डाला है. 99% of the questions में you will get something. If you can work your brain, कुछ ना कुछ आपका hints, कुछ ना कुछ आपके पास information दिया रहेगा which you can use. Clear everybody? Absolutely clear this thing. So let's just move on. Let's just move on to the next question then. Mohan sold a plot for 2 lakh rupees at 20% loss. To gain 10% profit, what should be the price it should, like he should sell the plot? Again, you see, same method we can use. You see, these are very relevant questions. But this is why like the method, the interesting approach that I told you guys, it's very important to learn. Now 20% loss, first you write it down. 20% loss, जो लेमैन है जिसको कुछ नहीं पता वो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा कि भाई मेरा सीपी अगर 100 है तो मेरा एसपी लॉस है मतलब 80 रुपया होगा. 20%, 20 रुपीज लेस. 10% प्रॉफिट करना है तो माई एसपी विल बी हाउ मच. 10% प्रॉफिट करना है तो मेरे को 110 रुपीज का एसपी चाहिए. डन. नाउ 2 lakh rupees the only value that I know, right? And ऊपर नीचे, नीचे क्या आएगा, नीचे you will always get what I told you guys already कि SP, because this 2 lakh is SP, this is SP at when, this is SP at 20% loss. जब 20% loss हुआ that is my SP. तो 20% लॉस हुआ तो SP ये है, तो दैट मीन्स दैट इज इट इज लाइक रिप्रेजेंटिंग 80. तो 80 नीचे डाल दो बिकॉज 20% लॉस होने का लाइक होने के बाद SP विल बी 80. नाउ क्या पूछा है, दे आर आस्किंग व्हाट प्राइस शुड वी सेल द प्लॉट. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ही पूछा है. व्हेन 10% प्रॉफिट इज देयर, दैट मीन्स दैट इज 110. ऊपर बैठा दो 110, दैट्स योर आंसर. Let's calculate this 0, 0 gone. 8 से कर लेते. So 8 2s are 16, 8 5s are this. So 200, so this is 25,000. Now 25 into 11, how much is this? I told you guys how to calculate using 11. 2, 5, 5 plus 2, 7. And there are 3 zeros here. So 2,75,000 should be the selling price if he wants to earn a 10% profit. Option में option 2. Option देखोगे तो that is your option 2. As simple as that. Very, very simple questions. No hurries, nothing like nothing we are doing out of sorts. Just understanding when to use, what to use. If you can get this idea, these type of questions will be a breeze for you. That I can promise you guys. Now let's continue then. Next question comes as question number 6. Mahesh purchased a radio at 9/10 of its selling price and sold it at 8% more than its original selling price. अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. Now 9/10 of selling price है ना, तो selling price का 9/10 मीनिंग जो CP जो है, purchase price जो है, that is 9/10 times of SP. Now please understand, it's a very good concept. तो SP को क्या ले सकते हैं? SP को, you see, if I take SP as a multiple of 10, then 10 will cancel, वो पूरा फ्रैक्शन वाला चीज गायब हो जाएगा. तो लेट्स डू वन थिंग. SP को ना कुछ ले लेते. SP को आई एम लाइक ट्राइंग टू टेक, एक काम करो, 8% का भी चेक करें तो आई एम टेकिंग 100 itself. 100 is both like useful for percentage and 10 का भी मल्टीपल है. तो आई कैन से SP मैंने ले लिया 100 रुपया. Now you see, why can I take values? देखो, last question में we couldn't take values because there was already one value present. I had to, if I wanted to do something, I had to take X, Y, Z anything variable. But here you see there is nothing like no particular value key in terms of rupees or anything is given. Everything it 9/10 means this is a ratio. Percent is percentage, and they are asking also percentage only. So there is no like I don't need to take any X, Y, Z any variable. I can simply take values and work out the things. Now SP अगर मेरा 100 है तो you tell me using this expression CP कितना होगा? CP will say 9/10 times of 100 rupees, that is 90 rupees. बढ़िया, CP भी मिल गया and SP भी मिल गया. Now what he is doing? Sold it 8% more than its original selling price. Original selling price was 100 rupees. तो actual selling price क्या है?
actual selling price, actual SP, 8% more than 100. 8% more 100 के respect में, that means 8 more. That means actual CP will be 100 plus 8, that is 108 rupees. तो देखो SP मेरे को मिल गया. This is my SP. This is my CP. Can I find the percentage gain? The answer is absolutely I can. कैसे निकलेगा? Percentage gain. अच्छा, gain means profit only, right? So gain is SP minus CP divided by CP into 100. So calculate this. 108 minus 90 divided by 90 into 100. So calculate this. It will be 18 over 90 into 100. So let's do one thing. 1010 gone. 9 2s are 18. So answer is 20%. The answer is 20%, option 1. 20%, that is your option number 1. I hope this is getting cleared. Moving on. Next question. A shopkeeper sells an article at a loss of 17%. Badhiya. Had he sold it for 144 rupees more, he would have earned a profit of 19%. The cost price of the article is what? Very, very good question. This is what we call had he sold type question. Had he sold is the kind of the keyword here. It will keep on repeating in different types of questions. तो ये करता तो क्या होता? This type of questions, honestly speaking, if you understand the concept, you don't need pen and paper. एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है. सोचो अच्छे से एक चीज सोचो. 17% लॉस में उन्होंने बेचा है, राइट? 17% लॉस. आई एम like trying to draw a number line here. So this is 0. So 17% loss means somewhere over here 17% minus represents my loss. Now अगर वो 144 रुपीज ज्यादा में बेचता, had he sold it for 144 rupees more, he would have earned a profit of 19%. That means profit of 19% means plus 19%, right? Now please understand, in terms of percentage, ये कितना डिफरेंस है? In terms of percentage, first 17% loss and 19% profit. What is the difference between them? So can I say 19 is this much is 19, 0 to right hand side, 0 to left hand is 17. So that means it is 36%. The difference is of 36%. Now please understand. 36% of what? Because both this is loss and this is your profit. But I know one thing, कि both profit as well as loss is always calculated on what? On your CP. So that means ये 36% of CP होगा. Can I say this then? कि ये जो 36% gap आया, this percent is 36% of what? 36% of your CP. Now and this CP, now ask yourself this question, कि भाई why? ये जो 36% चेंज हुआ, 36% लाइक 17% लॉस से 19% प्रॉफिट में चले गए, 36% जो लेस हुआ लाइक चेंज हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज कैन आई से बिकॉज ही सोल्ड इट फॉर 144 रुपीज मोर. 144 रुपीज ज्यादा दे के उन्होंने बेचा. दैट मीन्स ये जो 36% जो है ना मेरा, 36% is nothing but my 144 rupees. And CP का मतलब of CP means CP is always 100%. तो that means 100% कितना आएगा? 144 divided by 36 into 100. So this is gently 4 times. So that is 100% is nothing but 400 rupees. That means cost price of the article is 400 rupees, option 3. Now if someone has some doubt or problem कि सर आपने CP को 100% क्यों लिया, if you are not able to understand this, ऐसे सोचो, 36% of CP is equal to 144. The same thing I'm doing it in another like expression. तो आप बताओ 36% means 36 into 100 of CP is 144. तो इधर से देखो CP का वैल्यू will be 144 into 100 divided by 36. देखो ये चीज एंड ये चीज सेम है, दोनों चीज. इधर से कैलकुलेट करो तो इधर 4, तो इधर भी आपका ₹400 इज गोइंग टू बी योर आंसर. तो ऐसे भी कर सकते हो इफ यू फील मोर कंफर्टेबल, बट इट्स बेटर. हमेशा सोचो 36% ऑफ CP इज दिस.
मीनिंग सीपी का 36%, तो ऑलवेज जो सीपी है वो आपका 100% होता है. तो यू कैन ऑलवेज गो लाइक दिस. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. You can definitely use it multiple times. Okay, but understanding the thing is much more important. Moving on to the next question. Very again a very good question. Very good question. Especially for the ninja students. ये type ही बहुत ज़्यादा आता है. CP of 9 articles is equal to SP of 12. अरे बढ़िया. 9 आर्टिकल्स का सीपी, मैंने बोला सीपी एक आर्टिकल का सीपी लिखते हैं, तो 9 टाइम्स ऑफ ईच आर्टिकल का सीपी मीनिंग 9 इंटू सीपी, एंड 12 आर्टिकल्स का एसपी मीनिंग 12 इंटू एसपी. दीज आर इक्वल. तो एक काम करो, इसको 3 से 3, इस इज 4. मीनिंग देखो मेरा सीपी बाई एसपी क्या आया, सीपी बाई एसपी आया 4/3. ये विल से अरे ये कैसे, इसको कैसे करेंगे, समझते. देखो वेरी सिंपल लॉजिक हियर, वेरी सिंपल लॉजिक हियर. इफ दिस इज द थिंग देन यू टेल मी, मेरे को कुछ वैल्यूज का चक्कर है नहीं, कुछ रेशियो टाइप का दिया है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो कैन आई से ऐसा वाला जब चीज आएगा, रेशियो चैप्टर में भी बताया, ये वाले चैप्टर में भी, ये वाले वीडियो में भी बताया कि भाई आई कैन टेक दीज एज एब्सोल्यूट वैल्यूज. सीपी मेरा 4 रुपया है, एसपी मेरा 3 रुपया है. Absolutely take this. तो मेरा I can do what? I can say SP मेरा 3 रुपया है, CP मेरा 4 रुपया है. Can you find loss percentage? अरे बिल्कुल. Loss percentage loss is लॉस का फॉर्मूला लगाओ, या इफ यू वांट SP माइनस CP लगाओगे वो भी लगा सकते हो. तो इन दैट केस द वैल्यू विल बी नेगेटिव. तो चलो वही लगाते, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100. तो मीनिंग 3 minus 4/4 into 100. So that is coming out to be minus 25%. तो लॉस परसेंटेज पूछा है तो माइनस नहीं होगा, तो आंसर विल बी 25% लॉस, which is option 1, which is your first option. Very simple type question. I hope this is absolutely getting cleared. No worries there, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है. नेक्स्ट वेरी गुड टाइप क्वेश्चन. अगेन ये थोड़ा डिजिटल की तरफ हम मूव कर रहे, ये थोड़ा डिजिटल का तरफ है. प्लीज अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड. आफ्टर सेलिंग 25 lemons, a shopkeeper loses SP of 5 lemons. Find percentage loss of shopkeeper. वेरी सिंपल. देखो 25 lemons को बेचने के बाद 5 lemons का SP जितना लॉस हुआ, तो एक काम करो, देखो अगेन एसपी का ही चक्कर है ना, तो कोई वैल्यू है, पूछा भी परसेंटेज है, तो आई कैन टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज. क्या है मेरा सबसे अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1 रुपी. एक लेमन का एसपी ऑफ ईच लेमन मैंने ले लिया ₹1. वेरी गुड. तो आप बताओ 25 लेमन्स का एसपी क्या होगा. से सर 25 रुपीज. इसके चलते दिस इज द एसपी ऑफ 25 लेमन्स. इसके चलते लॉस हुआ है कितने का, 5 lemons का एसपी जैसा लॉस, मतलब ₹5 इज द लॉस. कैन आई से दिस कि मेरा लॉस हुआ 5 रुपीज, बिकॉज एक लेमन का एसपी इज 1 रुपी, 5 लेमन का एसपी जितना लॉस मीन्स 5 रुपया लॉस. तो आप बताओ मेरा भाई सीपी कितना है. कैन आई से देन सीपी कितना होगा, एसपी जो है सीपी बड़ा होगा देन, बिकॉज लॉस हुआ मतलब सीपी इज ग्रेटर. तो जो मेरा एसपी है उसके साथ जो मेरा लॉस है जोड़ दो, दैट इज 30 रुपीज. नाउ देखो मेरे को सीपी पता है, मेरे को लॉस पता है, परसेंटेज लॉस मिल सकता है. द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मिल सकता है. तो परसेंटेज लॉस पूछा है, कैसे आएगा. लॉस इज 5 रुपीज डिवाइडेड बाई सीपी इज 30 रुपीज, परसेंटेज 100 से करो तो इट्स वेरी क्लियर कि 6 है, तो इट विल बी 16.66%. 1/6 का वैल्यू, अगेन परसेंटेज टू फ्रैक्शन. तो देखो ऑप्शन 3 16.66% is my answer. I hope this is clear. Now these are the very few CPSP type questions, the most important types जो questions था हमने कर लिया. Now we'll move on to the concept of successive selling. थोड़ा like understand इतना सब पूरा clear है, I'm hoping, and then I'm moving on. चलो फिर next question then. Next, a very important concept is called successive selling. Now it's a very important concept. Now let's take an example. So for example, let's take that shoe wala example. So I am A and
I have a shoe manufacturing unit, I have a factory. Now I acquire raw materials, I acquire labor, I acquire all sorts of things, and CP of the, or the cost for the shoe comes out to be rupees 1000. For me, this is my CP. For me, this is my CP. Now, what do? I'm selling this to another person, B. Say this person has the showroom or the shop from where the shoes will be kind of like sold. Now, what I do, I take 20% profit on my shoes. So now tell me, what will be my selling price? So can I say my selling price will be rupees 1200? Because 1000 के ऊपर 200 रुपए, 20% means 200 रुपए का profit. Now you see very interesting thing has happened. क्या है? This 1200 rupees is selling price for A or me. This is my selling price. But for example, if I say B is also a shopkeeper. So for B, this 1200 is not selling price. For B, this 1200 is cost price of B. देखो, understand this. Please understand this. That means जो एक selling price है, the selling price or the cost price will depend on the person. कोई भी पर्सन के ऊपर वो डिपेंड करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1200 मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस है, बट फॉर दिस पर्सन बी दैट इज द कॉस्ट प्राइस. नाउ से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ही अगेन सेल्स इट टू अ रिटेलर, say for example 10% profit में, in with 10% profit. So the retailer is C. Now you tell me, for the retailer what is the cost price? So you'll see 1200 के ऊपर और 120 रुपया, because 10% is 120. So that means he will pay 1320 rupees. Now you will see this 1320 rupees is selling price for whom? For B. देखो, बिकॉज 1320 रुपीज में ये बी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने सेल किया सी को. बट फॉर सी दिस इज व्हाट? फॉर सी दिस इज सीपी. सी ने इतने में ही खरीदा, 1320 रुपए में ही उन्होंने, जो पर्सन सी है, जो रिटेलर है, उन्होंने खरीदा. नाउ अगेन सी विल सेल इट टू द कस्टमर. सी विल सेल इट टू अ कस्टमर कॉल्ड डी. नाउ से फॉर एग्जाम्पल इधर भी उन्होंने 20% का मार्जिन रख दिया, या 20%, इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, 10% का मार्जिन, 10% का मार्जिन उन्होंने रखा. नाउ यू टेल मी, वन सेकेंड, दिस, सो नाउ यू टेल मी, नाउ लाइक डी विल बाई इट फॉर हाउ मच अमाउंट? बी विल बाई इट फॉर 1320 रुपीज का 10% इज 132 रुपीज. सो 132 रुपीज विथ 1320, 1320 उसके साथ 132, सो दिस इज 52 एंड दिस इज 14. So 1452 rupees. This is the SP of C, can I say? क्योंकि C जो बंदा है, जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, उन्होंने 1452 रुपीज में कस्टमर को बेचा. एंड फॉर द कस्टमर और फॉर डी दिस इज हिज कॉस्ट प्राइस. अगर वो फर्दर किसी को बेचेगा, सो फॉर हिम द कॉस्ट प्राइस इज 1452. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दिस, एट द एंड ऑफ द डे कोई एक वैल्यू वो एसपी है, तो दैट डज नॉट मीन कि इट इज द एब्सोल्यूट एसपी. उसका मतलब ये नहीं है कि यही एब्सोल्यूट एसपी है. एसपी एंड सीपी विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, विल डिपेंड ऑन द पर्सन. मतलब कोई भी बंदा अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1200 रुपया मेरे लिए तो एसपी था, बट फॉर बी इट इज सीपी. अगेन 1320 रुपीज बी के लिए तो एसपी था, बट फॉर सी इट इज द सीपी. 1452 रुपीज सी के लिए तो एसपी था, बट फॉर डी दिस इज द सीपी. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस रिलेशन. तो सक्सेसिव सेलिंग का मतलब ही ये होता है कि द गुड्स, लाइक अ पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग सोल्ड, लाइक इट इज चेंजिंग हैंड्स सो फ्रिक्वेंटली. मीनिंग ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So please understand, CP and SP will keep on changing depending on the person you are calculating. किसके ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके ऊपर चेंज होगा. Now one more thing, here also you see there is successive percentage changes. You see 20%, उसके बाद उसके ऊपर 10%, उसके बाद उसके ऊपर 10%. So percentage chapter अगर आप लोगों ने अच्छे से किए हो तो you can say, अरे sir we can use AB theorem also.
Now, it doesn't necessarily mean we are going to use AB theorem every time. It will depend on the question. It will depend on the question. If they are at the end of the day, they are asking the net percentage change, then AB theorem is the best way to go. But if they are asking for a particular value, then AB theorem not always can be the best option. There may be another better option out there. I hope this much is clear. I hope this much is absolutely clear. So this is the basics of profit and loss, the successive selling concept. Very very important concept. बहुत आता है ये type का question. चलो, let's do a couple of questions. Let's start off with an easy one. As A sells an article to B at 20% profit. B sells it to C at 10% loss. अच्छा, please profit and loss देख के चलना. C sells it to D at 25% profit. D paid this much. Find the CP of A. अच्छा देखो, तो अल्टीमेटली थोड़ा एक चैनल बना लेते. A ने क्या किया? A ने 20% प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट के लिए आई एम लाइक मार्किंग अपवर्ड्स एरो प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने B को बेचा. B ने C को बेचा. कितने में बेचा? 10% लॉस में, 10% घाटे में. C ने क्या किया? C ने D को बेचा. कितने में? 25% प्रॉफिट में, 25% प्रॉफिट. So this is the situation. Now they are asking CP of A. CP of A they are asking, and given क्या है? D का CP जो है ना, CP of D जो है ना, that is 5400 rupees. Now you tell me CP of D, can I write? अरे भाई यही तो मेरा SP of C होगा. देखो D उतने में ही ना खरीदेगा जितने में C उसको बेचेगा. तो SP of C, सेलिंग प्राइस ऑफ C जितने में बेचा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द CP ऑफ D जितने में D ने खरीदा. सो दिस 5400 रुपीज यू कैन ईदर से CP ऑफ D और यू कैन से SP ऑफ C. तो नाउ यू सी दे आर आस्किंग CP ऑफ A. नहीं पता, लेट्स टेक इट समथिंग. CP ऑफ A आई डोंट नो, एंड परसेंटेज वाला चक्कर है, तो हम ले सकते हैं 100x रुपीज. नाउ यू टेल मी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, x क्यों लिया सर आपने? 100 क्यों नहीं लिया? यू सी, यू कुड हैव डन विथ 100, बट देयर इज अ वैल्यू इन्वॉल्व्ड, तो इट्स बेटर यू गो विथ अ वेरिएबल. इट्स अ बेटर प्रैक्टिस ऑनेस्टली. ठीक है. नाउ अनदर थिंग, कैन आई यूज AB theorem? द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes, you can use AB theorem. You can absolutely use AB theorem, but here it is, I feel, better to go with the normal percentage thing. क्यों? Because they are at the end of the day we are talking about the values. But don't worry, दोनों में बहुत अंतर नहीं आएगा, and I'll solve the same question using AB theorem once again. ठीक है, इधर ही करेंगे. So पहले नॉर्मल वाला मेथड से आप समझ लेते हैं. So देखो 100x, this is CP of A. तो CP of B क्या होगा? CP of B क्या होगा? Can I say 20% profit on CP of A? Because A ने B को उतने में ही बेचा. CP of B means SP of A only. That is 20% more than the CP. So it is into 120 by 100. Why? Because 20% more means 120%. तो A ने B को कितने में बेचा? A ने B को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 120% में बेचा. Perfect. This is CP of B. So this is your CP of B or SP of A, whatever you want to call it. Now, उसके बाद क्या हुआ? B ने 10% घाटे में C को बेचा. So 10% loss. Now this is the CP of B. This whole thing is the CP of B. Now what they are asking कि इसके ऊपर 10% loss हुआ B को when he was about to sell to C. तो 10% loss means कितने में बेचा? 90% में बेचा. 90% means 90 over 100. Perfect. चलो, तो ये हो गया C तक का. This is now the CP of C. This whole thing is now CP of C. Now D का क्या हुआ? C will sell it to D at 25% profit. C will now sell it to D at 25% profit, meaning 125% में बेचेगा. C will sell it to D in 25% profit. So 125% profit है. So 125 over 100. So this is now CP, like you can say, this whole thing is now CP of D or SP of C, whatever you want to call it. This is now given as 5400. This is now given as 5400. Simple logic. I hope you guys are getting this. Very very simple. एक ही लाइन में आएगा. तो सबसे पहले एक चीज करते, चलो इसको हटा देते, ये सब देखने में गड़बड़ लग रहा है.
So ये सब हटाओ. Now let's do the simple calculation here. Now 25 fives are this, 25 this is this. This is 6 times. 100 गया. और कुछ या 5 20s are this. 20 का 0 and this gone. 2 this 3. So we are getting this here. This is x is written and इधर 3 बचा है and anything there, nothing is there. So this is equal to, अच्छा then एक काम करो 3 and this is 1800. So x का वैल्यू मेरा आ गया 1800. अच्छा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, देयर वाज दिस 9 ना, एक्सट्रीमली सॉरी. सो 9 को भी कैंसिल आउट कर दो. 9 2s are 18, सो 200 बचा है. 200 मेरा बचा है, राइट? 200 मेरा बचा है. नाउ CP of A they are asking. So CP of A is going to be how much? 100 times of x. 100 into 2 like 200, that is 20,000 rupees. अरे ऑप्शन तो गलत हो गया. रुको. I have made some mistake. I must have made some mistake while calculating this. Just a second. Let's do the calculation once again. Because 5, देखो कैसे मेरे को ये भी पता चला, थोड़ा ये भी देख लो. 5400 है तो उसमें उधर से 20,000 कभी नहीं हो सकता. That's like absurd value, right? So चलो, I must have made some mistake. Let's see. 100 and 100 is gone. 5 is here, 4 is here, right? 4 and this is 30. 100 ka this 1, this 0 is gone. 5 2s are 10. Achha, I have made the mistake there. I figured it out. So this is 45, right? Now 3 1800s are 5400. 5 9s you can see, like 9 से करोगे तो 9 5s are 45, 9 200 this. So 5 4s are this 40. Yeah, now this makes sense. X is 40. Extremely sorry. I made the mistake here over here. इधर 100 को मैंने 6 लिख दिया था. I don't know why. So 40. So 100x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 100x will be 4,000 rupees. Right? 100x is going to be 4,000 rupees. CP of A they are asking. That was 100x. That is why we found out the value of 100x. So my answer will be option 1, 4,000 rupees. My answer is option 1, 4,000 rupees. Very, very simple way to do it. I hope this is clear. I hope this is absolutely clear to everybody. Moving on. Successive selling का और एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. Let's do it. This is a next question. अच्छा क्वेश्चन है. A purchased a radio and spent 110 rupees to repair it. Meaning again, ये देखो, ये देख के मेरे को क्या आया, ये भाई मेरा ओवरहेड एक्सपेंस है. देखो ओवरहेड एक्सपेंस हमेशा ऑन योर फेस नहीं होगा भाई. अगेन आई एम सेइंग दिस, हमेशा आपके मुंह के ऊपर नहीं दिया रहेगा कि अरे ये ऐसा है. नाउ देन ही सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. B sold it to C at a loss of 10%. C sold it to D at a profit of 10% for rupees this much. Find the price at which A purchased the radio. तो देखो अच्छे से थोड़ा इस इधर लाइक पहले ये ग्राफ बना ले. ग्राफ मीन्स जो भी चेन है, जो भी आप करना चाहो. C एंड D 4 लोग हैं. ये पूरा चीज 4 हाथ घूम रहा है. A से B, B से C, C से D. नाउ क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि ए ने कुछ पैसे में खरीद के 110 रुपीज के लाइक 10 रुपीज उसको उसमें लगाया टू रिपेयर. तो ठीक है, काम करो. देन ही सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तो ये आपका 20% प्रॉफिट में उन्होंने बेचा टू बी. ए हैज सोल्ड इट टू बी 20% प्रॉफिट में. बी हैज सोल्ड इट टू सी लॉस ऑफ 10% में. तो बी ने सी को दिया 10% लॉस में. अच्छा, वेरी गुड. सी हैज सोल्ड इट टू डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. सी ने डी को दिया 10% प्रॉफिट में. कितने में दिया? दिस इज गिवन 1188. दैट मीन्स एसपी ऑफ सी, सेलिंग प्राइस ऑफ सी, लाइक सी ने जब सेल किया डी को, दैट इज ₹1188. अगर आप चाहो तो इसको आप सीपी ऑफ डी भी करके कर सकते हो, बिकॉज एसपी ऑफ सी एंड सीपी ऑफ डी इज इक्वल. आई टोल्ड यू गाइस दिस थिंग, वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस. Now I don't know what is the like price of the radio, and you see if I even take 100x the CP of A, but उसके साथ ये 110 रुपीज ऐड होगा ना, उसके साथ ये 110 रुपीज ऐड होगा, तो this will create a problem like while calculating. Why it will create a problem? Because कुछ भी आप कर लो,
ये 100 को आप काट नहीं सकते। 100 लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज वही था कि वी कैन कैलकुलेट विद द परसेंटेज, परसेंटेज में ईजी होता है। सो दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक 100 हियर, बिकॉज 100 लेने का फायदा मेरे को नहीं मिल रहा है 100x लेने का। सो लेट्स टेक सिंपल x, बिकॉज वो 100 लो या x लो, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो क्यों भाई 100x ले, सिर्फ x ले लेते। तो x रुपीज के ऊपर उन्होंने 110 रुपया, दिस इज द सीपी। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द सीपी ऑफ ए। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, तो आपसे सीपी ऑफ ए ही पूछा है, फाइंड द प्राइस एट विच ए हैज परचेस्ड। बट प्रॉब्लम क्या है, ए ने ये सीपी हो सकता है, बट इसके साथ ये जो 110 रुपीज है, दिस इज ओवर हेड नो। ये तो जब ए ने खरीदा था तब तो ये पे नहीं किया था, उन्होंने उसके बाद पे किया टू रिपेयर इट। सो मेरा आंसर, और आपसे जो पूछ रहे, दे आर नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ 110 प्लस एक्स, दे आर आस्किंग ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेयर द माइनर मिस्टेक्स काइंड ऑफ किक्स इन। ठीक है, तो चलो लेट्स डू इट नाउ। x प्लस 110, उसके साथ क्या हुआ, बी को 20% प्रॉफिट में बेचा, मीनिंग 120% में बेचा, मीनिंग 120 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज बी। बी ने सी को बेचा कितने में, 10% लॉस में। 20% प्रॉफिट ने ए, लाइक प्रॉफिट में ए ने बी को बेचा था। नाउ बी ने सी को बेचा 10% लॉस में, मीनिंग 90% में। तो 90% मीन्स 90 ओवर 100 इनटू सी ने डी को कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट में। तो 10% प्रॉफिट मीन्स 110 ओवर 100 में। 10% प्रॉफिट मीन्स 110%, दैट इज गिवन एज 1188। चलो लेट्स कैलकुलेट, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते। 1 0 2 0 2 कौन, लेट्स डू दिस थिंग एज वेल। और क्या कर सकते, और कुछ करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, तो लेट्स बेटर है ना 11 से इसको काटो। 108 108 9 12 आर दिस, तो 9 12 हो गया, 12 12 कौन। तो देखो वेरी सिंपल, x प्लस 110 इज कमिंग आउट टू बी, ये 100 है, इधर एक 10 है, तो दैट विल बी 1000। तो x का वैल्यू मेरे को कितना आ गया, 890 रुपीज। 110 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 890 rupees is the value of x, and that is the price that A had paid for while purchasing the radio. So option 1, 890 rupees is your correct answer. ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नाउ यू मे से सर आपने लास्ट में भी बताया था, इसमें भी बताया कि सर लाइक वी विल डू वन थिंग, वी विल यूज द AB थ्योरम एज वेल, उसमें भी कर सकते। तो चलो थोड़ा उस वैसे भी देख लेते। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम ओनली, मैं दोनों नहीं कर रहा हूँ, ये वाला तो हुआ, ये भी कर सकते ये भी कर सकते, बिकॉज ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो लेट्स डू दिस वन ओनली, ठीक है। नाउ AB थ्योरम इज सेइंग भाई जो परसेंटेज चेंज का, आई विल गिव यू सम एस्टिमेट। तो 3 परसेंटेज चेंजेस है, 20 प्लस, सो लेट मी राइट इट डाउन, प्लस 20 बिकॉज प्रॉफिट है, माइनस 10 बिकॉज लॉस है, प्लस 10 बिकॉज अगेन प्रॉफिट है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू वन थिंग, AB थ्योरम में ना आप कुछ भी कर लो, देयर इज नो, you don't need any of the you can say order। तो आपको ऑर्डर मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ भी पहले करो कुछ भी बाद में करो, डजेंट मैटर। सो दैट्स द ब्यूटी। सो लेट्स डू दीज टू फर्स्ट, बिकॉज ये ना मेरे को दिख रहा है कि बहुत सिंपल है, ये -1% आएगा, मैं देख के आपको बता सकता हूँ कैसे। सो ये -10 प्लस 10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 10 into 10 by 100। I hope you guys remember the AB theorem, A plus B plus A into B over 100. So we are using this thing here. We are using this, and you see this is 10 and 10 gone, so this will 0 and this is -1%. So next AB theorem, I told you guys कि AB theorem एक साथ तीन केसेस में नहीं लगा सकते, दो करके लगाना होता है। तो आप बताओ, सो एक बचा है +20%, एक बचा है -1, और एक बार लगा दो ना भाई AB थ्योरम, जैसे हम लोगों ने सीखा था, +20 -1 प्लस माइनस इज -20 into 1/100 करोगे तो दिस इज 5। सो 20 -1 is 19 minus this, you see 1/5, 1/5 means 0.2। either you go like this or it's better ना, it's better आप इसको 1/5 ही रहने दो, थोड़ा easy होगा। 19 5s are 95, so this is 94/5%। This is 94/5%।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दैट मीन्स वट, दैट मीन्स सब कुछ घुमा फिरा के जो आपका बेसिक प्राइस था उसका वो कितना इंक्रीमेंट होगा, उसका 94/5% इंक्रीमेंट होगा. 94/5% इंक्रीमेंट का मतलब देन यू कैन से, अगर मेरा लाइक दैट कॉस्ट वाज x + 110, दैट वी फिगर्ड इट आउट ओवर हियर, ये वाला चक्कर में. तो उसके if you increase 94 by like 5%, so that will be how much, 100 plus 94 by 5 divided by 100, that is given as 1188. तो उधर से you see you can calculate x plus 110 into ये कितना आता है, नीचे आ गया 500, दिस इज 594 equal to 1188, right? So if you calculate this, I guess twice is going, this is 2. So देखो इधर से भी x plus 110 is 1000 and you get the same answer from here. You also get the exact same answer from here as well. So you see, again, you can do, like, you can use the AB theorem, but sometimes, or honestly most of the times, the values will be a little bit on not so favorable side. देखो 94/5, it's a little bit tricky to do. ठीक है. So that is why I feel most of the cases में this method is better if you ask me. बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, but हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, बिकॉज ऑल द परसेंटेजेस वो 100, 120, 125 अच्छे लाइक बहुत इजीली कट जाता है. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, द सक्सेसिव सेलिंग कंसेप्ट आई फील लाइक दैट इज एनफ, बिकॉज एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आता. ठीक है. नाउ cost price of 14 watches are same and each watch sells for rupees 450 and as a result earns a profit equals to cost price of 4 watches. Find the cost price of each watch. Very, very simple. देखो, this 450 is not CP. This is your SP, right? This is your SP. But they are asking, but all the information is given as a part of CP only. Now, please understand how to approach. Cost price of 14 watches, okay? All are same and every watch sells for 450 rupees. And it, as a result, it earns a profit equals to the cost price of 4 watches. Now, please understand. CP of 14 watches earns what? Earns a profit. This is profit, okay? Profit of what? Profit of CP of 4 watches. Can I say this? कि देखो भाई, ये आपका CP है for 14 watches. CP for 14 watches. Okay? Please understand. This is your CP for 14 watches and your profit is 4 like watches का CP. CP of 4 watches. So from here, can I say SP of 14 watches, SP of 14 watches is equal to cost price of 14 watches plus the profit, because I know SP is what? SP is CP plus the profit, correct? Because we are talking about profit here. So that means SP of 14 watches will be how much? Can I say CP of how many watches? 14 watches plus profit of 4 watches. That means 18 watches. That means I may write the equation is as 14 times SP of each watch is equal to 18 times CP of each watch. काटोगे तो ये 7, ये 9. Again I can write CP by SP is equal to 7 by 9. Again I told you guys, देखो ये रेशियो मेरे को मिल गया. Ratio I have found, right? Now you understand. Now like do I need to do anything else? No, नहीं चाहिए. क्यों? देखो भाई, आपसे सीपी पूछा है, आपसे पूछ क्या रहा है, इसकी सीपी कितना है ये बताओ, एक एक वॉच का. एसपी इज गिवन. नाउ यू सी, एसपी है 9 पार्ट्स तो सीपी है 7 पार्ट्स. सीपी बाई एसपी मिल गया, मतलब एसपी अगर 9 पार्ट्स होगा, सीपी होगा 7 पार्ट. तो मेरे को ये दिया है 9 पार्ट का जो वैल्यू है, दैट इज हाउ मच? दैट इज 450 रुपीज. देखो
because SP is given to us. SP is 450 and SP from here is 9. So 9 पार्ट का वैल्यू 450 है, तो 7 पार्ट्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है. अच्छा, लेट्स डू इट लाइक दिस. एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? एक पार्ट का वैल्यू विल बी, so 450 by 9, that is rupees 450 divided by 9, right? So that is 50 rupees. तो 7 पार्ट्स का वैल्यू क्या आएगा? 7 पार्ट्स का वैल्यू आएगा 7 times 50, that is rupees 5 7 is 35, 350 rupees. So that is option 2. That is option 2. देखो अगेन, ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज देयर टू काइंड ऑफ कंफ्यूज. तो देख के लगेगा क्या मतलब, थोड़ा अच्छे से नहीं बताया, दिया है सब कुछ बट नॉट वेरी क्लियरली, राइट? तो अगर आपको, इफ यू कैन डिकोड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस में दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. अगर उनको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाना है, या I told you guys कि in any of the papers there will be a few questions, 2-3 ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है. नाउ ट्रिकी डज नॉट ऑलवेज मीन कि बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं आएगा किसी को, ऐसा नहीं है. तो ट्रिकी मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ के मतलब समझ आ भी रहा है एंड ना भी आ रहा है. तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स एंड मैच बिटवीन दीज टू. ठीक है. बट इफ यू कैन डिकोड, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Let's move on. Let us move on to the next question. A shopkeeper sells 2 TV sets at the same price. अच्छा, first आप इतना तक पढ़ के let me give you an advice. Whenever this is a very important shortcut I am about to tell you guys. Whenever SP of 2 items are same, जब भी देखो SP of 2 items are same, then use AB theorem. आप बोलोगे सर ये तो सारे जगह पे आप AB थ्योरम करते हो. ऑनेस्टली ये इतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, एंड मीनवाइल एज आई एम सेइंग दिस, ये भी बता देते, इफ CP ऑफ 2 items are similar, I'll not say same, then you can always use allegation theorem. Allegation theorem क्या है हम सीखेंगे in next 2 classes only. ठीक है. allegation theorem यूज कर सकते हैं. I'm written it down. Why? Because एक जगह पे रहेगा तो you will also get a better idea. Because ऐसे तो बुक्स में नहीं रहता ना कभी भी. तो AB थ्योरम, SP सेम है तो AB थ्योरम लगा सकते हो, CP सेम है तो allegation थ्योरम लगा सकते हो. Now tell me which case is this. देखो फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको दिख गया, sells 2 TV sets at the same price, meaning SP सेम है. SP सेम है दोनों का. चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देन एक में 20% गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक में 20% लॉस हुआ. तो दैट मीन्स एक AB थ्योरम का A विल बी +20, B विल बी -20. देखो अंडरस्टैंड दिस प्लीज कि दोनों का एक में 20% प्रॉफिट, एक में 20% लॉस. तो दैट means we can do what? Use AB theorem, because they are asking net loss or gain. Net loss or gain, right? So +20 -20, plus into minus is minus 20 into 20 by 100. तो ये कट गया तो दिस विल बी -4%, मीनिंग 4% लॉस होगा. 4% लॉस है. देखो ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज सेइंग देयर इज 4% लॉस. बहुत बुक्स में आपको ये ऐसा मिल सकता है, कुछ अच्छा बुक्स लाइक वो SK वर्मा टाइप का कुछ अच्छा बुक उठाओगे, अरुण शर्मा, तो यू विल सी बहुत जगह पे दिस दे हैव गिवन यू द शॉर्टकट लाइक कि ऑलवेज इफ X% प्रॉफिट हुआ, एक में X% लॉस हुआ, देन देयर विल बी नेट लॉस ऑलवेज. दोनों सेम है तो नेट लॉस ही होगा X² by 100% का. ठीक है. यू सी कुछ नहीं है, ये AB थ्योरम से ही आता है. X अगर देखो ये भी +X है, ये -X है, तो x minus x minus plus into minus is x. This x into x is x² by 100. ये कट गया तो आपका बचा ये. So that is how the shortcut comes. But the problem with this one is, ये अगर ऐसे याद रखोगे तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इफ बोथ आर नॉट द सेम, 20 and इधर चलो 25 10 कुछ भी कर दिया, एनी नंबर एनी वैल्यू अदर देन 20, देन यू कांट यूज.
तो इट्स बेटर आई फील कि यू लर्न इट लाइक दिस कि भाई ऐसा है तो ये भी थ्योरम लगाओ, एसपी सेम ही हुआ तो वी कैन लाइक मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. I hope this is absolutely clear to everybody. This is very, very important. I'm again and again saying this. This is अच्छे से सीखना, that is more important. चलो चलो चलो. Next question. I'm taking all the prominent types, okay? देखो, this is another thing. This is like kind of allegation की तरफ चल रहा है, but थोड़ा देख लो, समझ लो अच्छे से. I'll give you a shortcut formula. A man sells two articles for the same price. One 20% gain and another on 25% gain. If one article's cost price is 10,000 rupees, then what is the second one's cost price? अच्छा अच्छा, लेट मी बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो ये जो पहला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था, ये आप नॉर्मल यूजिंग द नॉर्मल मेथड्स ऑल्सो यू कैन डू, बट एज एसपी दिया है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग्स. अगर आपको नहीं इतना भी याद नहीं रखना है, देन यू कैन डू डू इट इन द कन्वेंशनल मेथड. एंड आई होप जितना हम लोगों ने सीखा है, यू शुड बी एबल टू डू इट. बट अगेन मेरा काम है कैसे आप ज्यादा मार्क्स लाओ. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दीज थिंग्स. अच्छे से समझो. इधर भी सेम थिंग आई डू. इधर भी आई गिव यू अ शॉर्टकट. कैसा शॉर्टकट होगा, ये लिख लो, CP1 by CP2 इक्वल टू, ऑलवेज क्रॉस होता है 100 प्लस और माइनस लॉस और गेन ऑन आर्टिकल नंबर 1, पहला आर्टिकल में, एंड ऊपर आता है 100 प्लस और माइनस लॉस और गेन. अच्छा, ऑफ नहीं, और होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, लॉस और गेन ऑन आर्टिकल नंबर 2. देखो उल्टा हो गया, इधर CP1 इज ऑन टॉप, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इज दिस. इधर CP2 हियर, कॉरेस्पॉन्डिंग इज दिस. क्रॉस हो जाता है. ठीक है, इससे अच्छा फॉर्मेट नहीं हो सकता फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये अच्छा होगा. देखो कैसे प्लस और माइनस को यूज करोगे, लॉस हुआ तो माइनस यूज करोगे, गेन हुआ तो प्लस यूज करोगे. आई फील दिस इज वेरी यूनिवर्सल थिंग नाउ. सो चलो ये वाला लगा दो, एक लाइन में हो गया क्वेश्चन. कैसे, CP1 by CP2. अच्छा, लेट मी राइट इट डाउन ना. मैं फॉर्मूला तो इधर लिखा ही हूं, तो आई एम नॉट राइटिंग इट वंस अगेन. CP1 कितना था, 10,000 रुपया, डिवाइडेड बाई CP2 नहीं पता, I'm राइटिंग CP2 इक्वल टू 10,000 वाला नीचे आएगा क्रॉस में, तो फर्स्ट आर्टिकल में कितना गेन हुआ, तो गेन मीन्स प्लस होगा, तो 100 प्लस 20. सेकेंड वाला में क्या हुआ, 25% गेन, मीनिंग 100 अगेन प्लस 25. तो देखो CP2 एक लाइन में मिल जाएगा. सो दिस विल बी एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 10,000 डिवाइडेड बाई CP2 is 125 divided by 120. So like calculate this, 524s are this, 525s are this, 25 4s are 100, so 400 आ गया. तो देखो आपका CP2 आ गया 400 times 24. Now you say, अरे सर ये कैसे करे? No need to calculate brother. 2 zeros is there, 2 0 end में होगा सबका. ठीक है, so just calculate the third digit from the right. So 4 4s are 16. तो दैट मीन्स द थर्ड डिजिट जो है वो कितना होना है, वो 4 4 से 16 का 6 होना है क्या ऑप्शन में? ये देखो मेरे आंखों के सामने बैठा है ऑप्शन 4. अच्छा रुको, नहीं, दिस इज अनदर लाइक ऑप्शन दैट मे हैपन. देखो ये अच्छा आया कि दोनों में एक, तो लाइक दोनों पॉसिबल है. तो एंड आई सी, यू सी, दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज 24 4s आर, इन दैट केस आई हैव टू कैलकुलेट, नो वे. सो एक चीज देखो, 25 4s आर 100. अगर आपको कैलकुलेट तब भी नहीं करना है, 25 into 4 is 100. सो 24 into 4 will be something less than 100. ये होगा तो 116 नहीं हो सकता. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर, 100 से थोड़ा कम. एंड उतना चक्कर में नहीं पड़ना है, तो 24 4s are 96. तो 9600 is going to be your correct answer. I hope this is absolutely clear to everybody. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपली हम लोगों ने समझा, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. After selling an article for ₹78, a shopkeeper gains twice as he gains after selling the article for ₹69. Find the cost price of the article.
अच्छा, इधर आप एलिगेशन लगा सकते हो, बट अगेन वी हैवंट लाइक लर्न दिस. लेट्स गो इन अ सिंपल मेथड ओनली. कॉस्ट प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस ले लो, लाइक अच्छा सॉरी, वाई हियर, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, मैंने ले लिया CP इज X रुपीज, CP इज रुपीज X. ओके, नाउ अगर 78 में वो बंदा बेचेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? सो प्रॉफिट नंबर 1, मतलब फर्स्ट केस का प्रॉफिट कितना होगा? टेल मी. प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 78 माइनस X रुपीज, राइट? दिस इज वेरी सिंपल. एस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट नंबर 2 क्या होगा? प्रॉफिट नंबर 2 मीन्स if he sell, like if he had sold it for 69 rupees, तो प्रॉफिट क्या होगा? लाइक अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों जगह पे ही गेन है. अगर लॉस होता तो लॉस मतलब देन X विल बी ग्रेटर, X माइनस 69 होता. क्यों? लॉस मतलब CP बड़ा होता है, बट हियर वो दोनों जगह गेन है, तो 69 माइनस X रुपीज, दिस इज द प्रॉफिट हियर, दिस इज द सेकेंड प्रॉफिट. नाउ एक छोटा सा रिलेशन दिया है. क्या रिलेशन दिया है? कि दिस प्रॉफिट 78 में बेचने के बाद जो प्रॉफिट आया इज ट्वाइस एज मच एज 69 रुपीज में बेचने के जो प्रॉफिट है, मीनिंग इसका ट्वाइस इज दिस. खत्म, देखो इक्वेशन आ गया. जस्ट कैलकुलेट 78 माइनस X, 2 into 69 is 72 are 140, so 138 minus 2X. कैलकुलेट करोगे तो इधर इसको इधर ले जाओ, X हो गया, एंड 78 एंड दिस इज हाउ मच? 50 आ रहा है आई गेस, राइट? 50, या 50. एक सेकेंड, क्या किया गड़बड़? अरे 60 आएगा. 138, यू सी, 138 माइनस 78, तो 7 and 13 60 आएगा. 60 इज योर आंसर. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना आया? 60 रुपीज. ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 60 रुपीज. अगेन लैंग्वेज वेज ट्रिकी है, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ इधर उधर का चीज नहीं है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलो मूविंग ऑन. A shopkeeper sells an article 20% profit में, बढ़िया, 20% profit में. Had he bought it for 20% less and sold it for rupees 15 less, he would have earned a 30% profit. देखो, had he sold it टाइप हम लोगों ने किया था, बट उसमें ना सिर्फ सेलिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें चेंजेस था. बट इधर देखो, CP में भी चेंज कर दिया, सेलिंग में भी, SP में भी चेंज कर दिया. तो ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है. ठीक है, लेट्स डू इट. CP पूछा है, चलो CP लेके ही चलते, बिकॉज प्रॉफिट है, लॉस है, तो CP लेके चलना इज द बेटर वे बेट. सो इसको पर परसेंटेज है तो 100x ले लेते. CP को हमने ले लिया 100x, राइट? नाउ 20% प्रॉफिट में बेचेगा तो नॉर्मल SP क्या होगा? इनिशियल SP1 आई एम राइटिंग, इनिशियल SP जो वो सब करने के पहले, so it will be 120x because 20% profit में बेचा, CP was 100x. Now second case क्या हुआ? This is also I'm taking CP1, पहला जो CP है. Now अगर उन्होंने 10% लेस में खरीदा था, मीनिंग CP2 अगर उनका क्या होता? उनका 10% लेस होता मीन्स 90% होता. 100x का 10% लेस मीन्स 90x. आई होप इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना, ये तो दिमाग में हो जाना चाहिए. Now, sold it for rupees 15 less, meaning SP2 क्या होगा? जो नेक्स्ट सेकंड सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? जो पहला वाला था उससे 15 रुपया कम, 120x से 15 रुपीज कम. Then he would have earned a 30% profit. अगर ये वाला चक्कर होता तो उनको 30% प्रॉफिट मिलता. तो आपसे पूछा है भाई 100x का वैल्यू बताओ, CP का वैल्यू बताओ. वेरी सिंपल, देखो CP पता है, प्रॉफिट पता है, SP पता है, इक्वेट कर दो. CP का 90x, 30% प्रॉफिट मीन्स 130%, 130 by 100. CP का 30% प्रॉफिट इज SP, 120x माइनस 15. देखो हो गया था काम, मेरा हो गया. 90000. अच्छा, 13 9s are 117x is equal to 120x minus 15. तो देखो इधर से x का वैल्यू आ रहा है 5, लाइक 3x और 15, x is 5. तो 100x का वैल्यू क्या होगा? इनिशियल कॉलिंग लाइक कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 500 रुपीज. x की जगह 5 बैठा तो 500 आएगा. ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 once again is your correct answer.
I hope this is getting clear to everybody. I hope this is absolutely clear. Very, very simple stuff, right? Next, this question. A shopkeeper sells an article for 25% profit and allowing a discount of 20%. Find the ratio of the mark price and the cost price. तो देखो हम लोग अभी लास्ट फेज में हैं जिधर जिधर डिस्काउंट वाला 2-4 क्वेश्चन सीखेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट सीखेंगे, क्लास इज ओवर. बहुत ज्यादा बचा नहीं है और 10 मिनट का ही क्लास. ठीक है, देखो 25% प्रॉफिट में उन्होंने सेल किया आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ये देखो, जब इन द बिगिनिंग स्टेज में मैंने बताया था सीपी है, एसपी है, एमपी है. आज का क्लास का स्टार्ट ही इधर से हुआ था. मैंने बताया था देयर इज नो पॉसिबल वे ऑफ गेटिंग अ रिलेशन बिटवीन दीज टू डायरेक्टली इफ नॉट गिवन. तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में? देयर इज ओनली वन लाइक वे. सीपी से एसपी चलो, एमपी से एसपी चलो, दोनों को इक्वेट करो. देखो ये वाला चीज सेम. कैसे? देखो एक चीज देखो, सीपी मेरे को नहीं पता, मैंने लिया 100x. एमपी मेरे को नहीं पता, मैंने लिया 100y. आप बोलोगे सर 100 क्यों? बिकॉज एवरीथिंग देयर इज इन परसेंटेज. चलो लेट्स सी. तो मेरे को पूछा क्या है? मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है. तो मेरे को एमपी इज टू एसपी सॉरी सीपी का पूछा है. दैट मीन्स 100y इज टू 100x का वैल्यू पूछा है. दैट मीन्स 100 कैंसिल्स. y इज टू x मेरे को मिल गया तो भी मेरा काम बन जाएगा. MP is to CP, 100y 100x, y is to x, सेम थिंग है. नाउ CP से SP कैसे चले? प्रॉफिट और लॉस लेके. प्रॉफिट कितना दिया है? 25% प्रॉफिट दिया है. तो आप बताओ SP क्या होगा? इधर से SP होगा, कैन आई से 125x, कैन आई से दिस 100x का 25% मोर. नाउ MP से SP कैसे आए? डिस्काउंट में. तो 20% डिस्काउंट मीनिंग 20% लेस. तो कैन आई से, तो आप बताओ इधर से एसपी आपका कितना आएगा? 20% लेस है, मीनिंग 100y का 20% लेस मीन्स 80%, दैट इज 80y. तो आपको बताया गया कि भाई देखो दोनों ही तो एसपी है. ये 125x भी एसपी है, 80y भी एसपी है. हो गया काम. मेरे को y/x पूछा है. y/x इज 125/80. थोड़ा कैलकुलेट कर दो. 5 16s are this, 5 like 25s are this. 25/16 is the answer. और 25 is to, और रेशियो में लिखोगे तो 25 is to 16. ऑप्शन में ये देखो ऑप्शन 2, ये देखो ऑप्शन 2 में आज अच्छा से बैठा हुआ है. This is another type of question. Very, very simple, very, very easy to do question. But ये चक्कर थोड़ा समझो. जब भी आपको CP, SP, MP सारा कुछ दिख जाए एक जगह पे, हमेशा समझो SP निकाल के you have to do whatever you want to do. इक्वेशन आपका SP का ही बनेगा. So इससे अच्छा मेथड आई डोंट नो. आई डोंट थिंक इससे अच्छा लाइक इससे क्लियर मेथड हो सकता है. मतलब थॉट प्रोसेस क्लैरिटी का बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक के ऊपर एक डिस्काउंट. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस. आप मॉल में गए, 2000 का जीन्स का पैंट था, जैसे जो एग्जांपल हम ले रहे थे, राइट? उसके ऊपर मॉल वालों ने बोला 20% डिस्काउंट है सर. तो आप बोला अच्छा बढ़िया. तो उसके बाद तो आपने देखा तो 20% डिस्काउंट मीन्स 2000 का 20% कम कर दो तो 1600 रुपया होगा एसपी. 1600 रुपया होगा एसपी. एंड देन सम लाइक हमारा गवर्नमेंट ने जो बताया तो उन्होंने भी लाइक अगेन उन्होंने बोला सर आप अगर यूपीआई से पेमेंट करोगे, इफ यू पे वाया यूपीआई यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट अनदर 10% डिस्काउंट. नाउ आपने बोला अच्छा बढ़िया है, तो दैट मीन्स मेरे को 20% डिस्काउंट मिलेगा इधर एंड 10% मेरे को 30% डिस्काउंट मिलेगा. द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, नॉट 30%. 30% डिस्काउंट तो भाई नहीं मिलेगा. तो देखो ये जो 10% जो डिस्काउंट मिलेगा दैट विल नॉट बी ऑन 2000 रुपीज. अगर ये 20% डिस्काउंट मेरा 2000 में आया, 10% भी अगर मेरा 2000 में आता, देन टोटल 30% होता, बिकॉज बोथ द परसेंटेजेस आर ऑन द सेम वैल्यू. बट ऐसा नहीं है. ये 10% कहां मिलेगा, किसके ऊपर? 20% मिलने के बाद जो 1600 रुपीज आया उसके ऊपर 10% मिलेगा, नॉट ऑन 2000.
तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, मीनिंग मोर देन वन डिस्काउंट एक्टिंग ऑन ऑन अ प्रोडक्ट. तो ऑलवेज रिमेंबर, यू कांट जस्ट सिंपली ऐड देम एंड यू फिगर इट आउट. तो अभी एक चीज थोड़ा देख लो भाई, एक चीज थोड़ा सा देख लो. क्या देखना है? तो ये जो चक्कर आपका चल रहा है, आप अच्छे से अगर देखोगे, 1% चेंज वैल्यू आया, उसके ऊपर 2% चेंज वैल्यू आया, तो क्या है? ए बी थ्योरम फिर से आ गया. कहां से उड़ के ए बी थ्योरम फिर से आ गया हम लोगों के पास. So that is again what we are going to do in successive discount, but with a small twist here. क्या twist है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज नथिंग बट एमपी को आप घटा रहे हो. कैन आई से इट इज नथिंग बट डिक्रीमेंट ऑन एमपी, डिक्रीमेंट ऑफ एमपी. तो एमपी को आप घटा रहे हो, एंड घटाने से AB theorem is very clear on this. If you are reducing some value, if you are decreasing some value, always use negative sign. तो अगेन तो AB थ्योरम को अगर हम लोग थोड़ा सक्सेसिव डिस्काउंट के जैसा मोल्ड कर ले, तो अगर मेरे पास A% डिस्काउंट है, देन आई एम गेटिंग अ B% डिस्काउंट. एज डिस्काउंट मीन्स घटाना, तो द फॉर्मूला विल बी माइनस A माइनस B, माइनस इंटू माइनस इज प्लस A इंटू B by 100 in terms of percentage. This is the effective discount of two discounts, A% and B% respectively. ठीक है? Either you can remember it like this, always the value नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव मतलब डिस्काउंट है. बहुत लोग ना वो नेगेटिव अवॉइड करने के चक्कर में फॉर्मूला को ऐसे भी याद रखता है कि A प्लस बी माइनस AB by 100. अब बोलोगे अरे ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ भाई, जस्ट माइनस को कॉमन ले लिया कि माइनस ना आए. So if you, I prefer using this, but if you want, you can also use this. Value change नहीं होगा, like you'll learn the same thing, correct thing. But problem क्या है? अगर ये यूज करोगे तो क्यों यूज करोगे, कैसे इधर से ये आता है, ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है. ठीक है, चलो लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. लास्ट 2 ही क्वेश्चन बनाना है, 18, 19, देन द क्लास इज डन. A single discount of 50% on an article costing 10,000 is better than 2 successive discounts of 40% and 10% by what percent? By what rupees? ऑप्शन देख के मेरे को पता चल गया कि रुपीज वाला चक्कर है, राइट? अच्छा, 40 एंड 10% का दो डिस्काउंट है, या तो 50% का एक डिस्काउंट है. कौन सा वाला चूज करना है, ये आपसे पूछा है. तो देखो 40 एंड 10% का डिस्काउंट का नेट सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 40 है एक 10 है. तो नेट डिस्काउंट क्या होगा? आप बोलोगे अरे सर लेट्स यूज AB थ्योरम. -40 -10 माइनस प्लस 40 इंटू 10 by 100. तो ये मेरा -50 प्लस 2 zeros गॉन, तो 4 है. दैट मीन्स वी आर गेटिंग -46%. मीनिंग ये दोनों को कंबाइंड लेने का मतलब होता है 46% डिस्काउंट. देखो अगर ये माइनस साइन आपको नहीं चाहिए, देन यू यूज द A प्लस बी माइनस AB by 100. बट माइनस है तो क्या हुआ, मेरे को अच्छा दिख रहा है कि डिस्काउंट है. एंड इधर देखो, नाउ बैक टू द क्वेश्चन, ये है 46% का डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट दोनों का मिला के. एंड अनदर डिस्काउंट इज 50%, जो द सिंगल डिस्काउंट. आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है 4% का. 4% का डिस्काउंट कम है. एंड एमपी कॉस्टिंग क्या है? एमपी इज 10,000. तो 4% ऑफ व्हाट? 4% ऑफ एमपी 10,000. तो देखो इट इज वेरी सिंपल, 4 by 100 into 10,000. 2 zeros gone, so it is coming out to be 400 rupees. तो अगर आप 50% वाला डिस्काउंट चूज करोगे, वन सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50%, इट इज ऑलवेज बी 400 रुपीज चीपर टू यू. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर 40 एंड 10 को इफ यू ऐड देम एंड देयर इज अनदर डिस्काउंट व्हिच इज लाइक द एडिशन ऑफ दीज टू, ऑलवेज द सिंगल डिस्काउंट इज ग्रेटर. ठीक है, ऑलवेज इन दोज केसेस द सिंगल डिस्काउंट विल बी ग्रेटर. ऑलवेज ये होता है. क्यों होता है? बिकॉज देखो इधर जो टर्म है इधर प्लस हो जाता है, मीनिंग अल्टीमेटली माइनस एंड प्लस मीन्स वो डिस्काउंट घट जाता है. तो सिंगल डिस्काउंट अगर 40 + 10 है एंड इधर नॉर्मल 40 है, तो डेफिनेटली सक्सेसिव डिस्काउंट विल बी ग्रेटर. बट 40 एंड 10 एंड 40 + 10 करके 50 आता है, वो सिंगल डिस्काउंट है, तो हमेशा वो वाला फर्स्ट होगा. अगर ऐसा कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी है कि
like which will be more beneficial, 50% single discount or 40 and 10% का दो discount. So definitely in those cases you don't need to do anything. You can simply say भाई हटाओ, made of single discount will be the higher one. You don't need to calculate. ठीक है everybody? Last question of the day. Last question of the day is saying the price of an article is raised by 20%, बढ़िया, and then sold after giving two successive discounts of 10% each. The SP of the article is approximately what percent of its CP? Now, price of the article is raised by 20% means after raising will get MP. मतलब वो बढ़ा के वो टैग चिपकाया गया. Always remember ये वाला चीज ऐसा होता है. Now CP, चलो CP को ले लेते कुछ परसेंटेज वाला चक्कर है तो CP को 100x ले लेते, बढ़िया रहेगा. तो आप बताओ इधर से MP क्या आएगा? MP will be 20% मोर, CP को 20% बढ़ा के रखा है तो 120x, करेक्ट. उसके ऊपर क्या हुआ, दो 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट. अच्छा, दो 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है उसका नेट क्या होगा? नेट डिस्काउंट क्या होगा? कैन आई से -10 माइनस प्लस 10 into 10/100, तो करोगे तो 1 आता है. तो दैट मीन्स -19%. तो नेट डिस्काउंट है मेरा 19%. तो आप सोचो देन एसपी क्या होगा इधर से? कैन आई से देन एसपी विल बी वट एवर माई एमपी, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट आया इफेक्टिवली 19%. तो 19% घटा दो, दैट मीन्स 81%/100. सो देखो इधर से कैलकुलेट करोगे तो लाइक 25 are this, 26 are this, कुछ फायदा नहीं हुआ. तो 6 8s are 48, so 4 8 and 6x/5. चलो दिस इज द एसपी. नाउ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज परसेंटेज ही तो पूछा है. एसपी मेरे को पता है, सीपी मेरे को पता है. सीपी कहा गया 100x है. तो दे आर आस्किंग ये जो वैल्यू है एसपी, देखो प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, एसपी सीपी का कितना परसेंट है वो पूछा है, राइट. चलो बना लेते. एसपी है 486x/5, किसका है 100x का. परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर. तो आई एम कैलकुलेटिंग द रेस्ट ऑफ द स्टफ हियर. देखो 100 कैंसल्स आउट, x कैंसल्स आउट, तो 486 डिवाइडेड बाई 5. तो अप्रोक्सीमेटली करोगे तो देखो 480 को 5 करोगे तो 96 आता है. रुको 486 कर, अच्छा ऐसे करो इंटू 2 ओके. तो 480 96 90 960 एंड दिस इज 12 972 बाई 10. तो ये आपका 97.2% आता है अप्रोक्सीमेटली. बट नहीं चाहिए, नहीं एंड नहीं दिया है. नियरेस्ट वैल्यू क्या है? बिकॉज देखो अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया गया है तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट. इतना ना भी करोगे तो चलेगा. तो नियरेस्ट वैल्यू एज आई कैन सी इज 95%. तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर कि भाई देखो मेरा 95% अप्रोक्सीमेटली विल बी द एसपी ऑन लाइक एसपी विल बी द approximately 95% of its CP. So this was profit and loss, one of the most important and one of the lengthiest chapters. अच्छे से करो, बहुत सारा टाइप्स जो भी आ सकता है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है, ये छोड़ के भी कैट वगैरह के लिए 2-4 सब टॉपिक्स है, बट ऑनेस्टली यू डोंट नीड दैट. दैट इज व्हाई आई हैवंट टेकन एनी क्वेश्चन ऑन दैट. ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम इज वेरी स्पेसिफिक, तो वो सारा चीज़ वो आप बोल सकते हो कि सर डिसऑनेस्ट डीलिंग वाला चक्कर वगैरह ने क्यों नहीं किया. देयर विल बी सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर को मिलाया जाता है, तो वो हम करेंगे, वो हम छोड़ेंगे नहीं, वो आता है. बट वो मिक्सचर चैप्टर में करेंगे. जब मिक्सचर वाला केसेस बनाएंगे तभी उधर प्रॉफिट एंड लॉस घुसा देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो आई होप कि आपको तब आपको कंसेप्ट जो है याद रहेगा, एंड बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उधर. सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास देन. Thank you so much. I hope everybody have understood this. So I'll be meeting you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.